Good afternoon, Dhaval. Let's start. 2:45. Okay. Today, I'll be doing equations, this sum first. Then I'll go to yesterday's test. Some questions, many of you are going wrong or you are not attempting it when they are easy. And then sorry, first of all, I should say sorry. From yesterday's exam, 2 questions were out of your syllabus. गलती से मैंने सेट कर दिए. 2 questions were out of your syllabus. आपको नहीं है. कुछ पता चला आप लोगों को कि 2 क्वेश्चन हमको नहीं थे और फिर भी आ गए? Which questions they were? Similar 2 questions थे. Anybody? 2 questions were there, which is not part of your syllabus. Yes, Utkarsha, you are very correct. So you should take your sums, your answers from out of 23. Squares वाले sum. 7 square plus 8 square plus 9 square. Square वाला आप लोगों को नहीं है. तो ऐसे 2 क्वेश्चन मेरे पास आ गए थे. Really, very sorry for that. कि नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा. इनफैक्ट कल मैं भूल गया था पेपर सेट करने को एंड एंड में लास्ट मोमेंट में मैंने सेट कर दिया. उसमें मेरे पास है गड़बड़ हो गई. देन आई रियलाइज कि आई हैव डन मिस्टेक. देन बोला चलो अभी जाने दो. नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर you will not have such question. तो स्क्वायर वाले आपको नहीं है. अगर होता तो मैं सिखा. उसका फॉर्मूलाज है, उसका भी फॉर्मूलाज है, पर आपको नहीं है तो अननेसेसरी. और फॉर्मूला इजी नहीं है तो अननेसेसरी आपके दिमाग में नहीं डालना चाहता हूं मैं. ओके, सो सॉरी फॉर दैट. सो यस्टरडे सम आपके मार्क्स आप 23 में से ले लो. फिर भी उसमें से सर्टेन क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर रहे जो कि इजी होते हैं या गलत कर रहे हैं. तो आई डिस्कस देम एंड देन इक्वेशंस पे वापस आएंगे. चलो, एक कल का सम जो नहीं हुआ था वो देखो. अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक्स वाई लेके नहीं कर रहा हूँ मैं आपको देखो किस मेथड से बता रहा हूँ. इनफैक्ट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस लेट मी टेल यू, माय मदर वाज अ मैथ्स टीचर. अपने दोषी सर है वो मेरे मम्मी के स्टूडेंट है. Okay, now she is not there, my mummy, but she showed me some easy ways of mathematics, and I'm solving this sum, a sum, by that easy method. Look at this. Okay, one second. Okay, what it says here, the age of a person is twice the sum of the ages of his 2 sons. And आगे तो रुकना ही है, but क्या बोल रहा है? Age of a person. So let's say here age of a person. P for person. आप x y z भी ले सकते हैं, पर आपको सोल्यूशन करना भी नहीं है. तो P is person. Is means is equal to. Twice means 2. Sum of the age of his 2 sons. So let me say son 1 S1 plus S2. This is my equation 1. समझ में आ गया इतना? Age of a person, so P is equal to twice age of the son's age. Now 5 years ago means 5 years पहले. तो क्या हो जाएगा? इधर P minus 5 years ago thrice the sum 3. 5 years पहले S1 minus 5 रहेगा. 5 years minus. Okay, so further now solving this, P minus 5 is equal to 3 S1 plus S2 minus 5 and minus 5 make minus 10. This value you can get it from equation 1. Equation 1 है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 को उस साइड में लेके जाओ तो क्या आ जाएगा? P divided by 2 is equal to S1. So what is the value of S1 plus S2? P upon 2. So let us replace this S1 plus S2 by P upon 2. P minus 5 is equal to 3. In bracket S1 plus S2 is P upon 2 minus 10.
नाउ एलसीएम लेना पड़ेगा, p अपॉन 2 माइनस 10, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट, एलसीएम ले रहा हूं, p माइनस 20 अपॉन 2, फर्दर p माइनस 5 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इज इक्वल टू 3p minus 20 into 3 that is 60 upon 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2p minus 10 is equal to 3p को इधर ले लिया तो हो जाएगा 60 minus 10, 60 minus 10, 1 से $60 minus 10 is equal to 3p minus 2p. So finally, 50 is equal to p. What is p? P is parent age, and parent age is 50. Option D. Somebody has sent me yesterday's solution also. Okay. I don't know. I don't remember the name. Okay. Two of you during the lecture only they have solved and you have sent one answer I got afterwards. Okay. So this is the way you got it. Clear? अब चलते हैं yesterday के एग्जाम में से 2-3 पॉइंट करके फिर आते हैं इधर इक्वेशंस। हो गया? स्क्रीनशॉट में कुछ लेना है ले लो। P is equal to 50. So you solve by any method, doesn't make a difference. Now, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए और आपकी गलतियां हो रही है तो I'll go and discuss those sums. कहाँ से? अपने सेट्स में से। मेरे को लगा आप लोगों को समझ में आ गया है, बट अभी समझ में आ रहा है कि आपको नहीं समझा है। लुक एट दिस, कुछ याद आता है? ये इनवर्स फंक्शन है। इफ ये किसका चालू किया मैंने? दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज सेट्स में से। इफ f of x is equal to x minus 7, then f raised to minus 1, that is inverse होता है। f inverse x कितना? ओके, इजी वे इज इधर x है, x minus 7 है, तो minus 7 है, उल्टा करोगे उसको, माइनस का उल्टा, that is if you change the side it will become plus, तो x plus 7 ये उसका इनवर्स हो जाएगा। बट नहीं, तो आपको एक एक स्टेप से समझा रहा हूँ। देखो कोई भी इजी था, इजी सम है, डिफिकल्ट भी आएगा तो ये स्टेप से कर सकते हैं। 4 सिंपल स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या बोला है? रिप्लेस fx by y। मैं इधर नीचे लेता हूँ इक्वेशंस, समझा रहा हूँ स्टेप। आगे आपको 2-3 समय आपको करने को दे रहा हूँ, आप लोग करो और बोलो मेरे को इजी है, इसमें गलतियां होनी नहीं चाहिए। क्या बोला है? रिप्लेस। आपको दिया हुआ इक्वेशन क्या है? अपने को दिया हुआ इक्वेशन fx is equal to x minus 7। एग्रीड? सबको देखो अभी यहाँ से इनवर्स में गलतियां कभी नहीं होनी चाहिए। टेक इट एज अ रिवीजन एंड डू इट। इक्वेशन कोई डाउट? जरा रिप्लाई करो, स्पेशली जिनको आता नहीं है, जिनको कल कम मार्क्स मिले, जरा स्पेशली रिप्लाई करो। ये समझा क्या लिया मैंने? fx is equal to x minus 7 दिया था ना क्वेश्चन में, वो ले लिया। अब स्टेप 1 कर दे। क्या बोला स्टेप 1 में? रिप्लेस fx by y। fx जहां पे लिखा है उसको चेंज करके क्या करो? y करो। तो ये इजी स्टेप है ये। y is equal to x minus 7। स्टेप 1 हो गया। ओके, स्टेप 2, नाउ कन्वर्ट द इक्वेशन टू x is equal to something। राइट ना? इक्वेशन कैसा है तुम्हारा? एट प्रेजेंट द इक्वेशन इज y is equal to something। Now convert this equation to x is equal to something। आएगा करने को? 7 को इस साइड में ले लो तो क्या हो जाएगा? y माइनस है उधर, तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस 7 is equal to x। That is I can say here x is equal to y plus 7। कुछ नहीं, वही लिखा मैंने। Agreed?
हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते क्या बोला है, रिप्लेस x विथ fx। अभी क्या है, x है, इधर x है, दिस x रिप्लेस विथ fx, तो fx is equal to y plus 7 and comes a replace every y with x। जिधर जिधर y है, जितने भी y है सब y को x कर दो, क्या हो जाएगा, fx is equal to y को x कर दो तो x plus 7, यही हो गया इनवर्स। तो दिस इज नथिंग एल्स बट इनवर्स फंक्शन। क्लियर, समझ में आया। उधर से भी इजी था, -7 उल्टा उधर साइड में लेके जाएंगे, -7 का उल्टा +7 हो जाता है, प्लस होता तो माइनस हो जाता था, तो सिंगल ऑपरेशन पे, बट इतना भी डिफिकल्ट आने दे, ये 4 स्टेप से हो जाएगा, तो इतना भी करने का जरूरत नहीं था। कैसा इजी वे कैसा बोला मैंने, इधर इक्वेशन में क्या बोला आपको, x -7 -7 का इनवर्स +7, देखो x +7 सर, माइनस प्लस होता तो x -7 होता था इनवर्स करने के बाद, मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड होता, डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। एनी डाउट, एनी डाउट, अभी नहीं बोलेंगे फिर एग्जाम में गलती करेंगे। देख लो नेक्स्ट, अभी अभी का भी रिवीजन ही चलो, ऐसा समझ लो इसका इनवर्स फंक्शन का, वापिस रिवीजन करेंगे तब एक हाथ सम करूंगा। अब ये करके देखो, वो x बिलोंग्स टू आर, वो छोड़ दो आप, ये स्टेप्स है और वो है, करो और आंसर निकालो, फिर मैं करता हूं। पहला स्टेप, 4 स्टेप में कोई भी कितना भी डिफिकल्ट इक्वेशन होने दे, 4 स्टेप में आएगा इनवर्स। अब इजी भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझते तो स्टेप्स फॉलो करो। फिर एग्जाम में क्यों नहीं आते ऐसे सब आंसर, आज अभी बराबर दे रहे हैं आंसर, एक बार वापस देखो, चालू करता हूं और चारों स्टेप करके दिखा देता एक बार वापस। गिवन इक्वेशन f of x is equal to 3x plus 4 गिवन। स्टेप 1 क्या बोलता है, रिप्लेस f of x by y, तो y is equal to, ये जब सिखाया तभी भी मैंने बोला था ऐसा करने को, 3x plus 4। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। 3x plus 4 खाली स्टेप्स लिखे नहीं थे, अभी लिख के दिए मैंने ना। कन्वर्ट द इक्वेशन टू x is equal to something, तो पहला 3x इधर ही रहने दे, इस 4 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 is equal to 3, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y -4 divided by 3 is equal, that is x is equal to, उल्टा लिखता हूं इसको, 1/3। द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक स्टेप 2 हो गया। 3 रिप्लेस x विद fx, अगर fx भी नहीं बोलना चाहिए, f इनवर्स x लिखना चाहिए इधर, f इनवर्स x is equal to, रिप्लेस y with x,
x minus 4 whole divided by 3 हो गया इनवर्स। क्लियर? एक और सम किया, अभी तो क्लियर, और भी है 2-3 सम। क्लियर? पक्का एकदम, आगे गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट तो करो इसको, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको स्टेप फॉलो करो, डायरेक्ट करने मत जाओ, स्टेप फॉलो करो और करो। फॉलो द स्टेप्स। पहला स्टेप तो लिख के रखता हूं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। थोड़ी मेहनत करो x इज इक्वल टू निकालने में। कुछ भी करो, x इज इक्वल टू निकालना है हमको, आना ही चाहिए, होना ही चाहिए। स्टेप 2 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्टेप, बाकी तो इजी है, रिप्लेस करना ही है। एक आंसर आ गया, कुसुम ने आंसर दे दिया, पूजा यस करेक्ट। आई वांट दोज हु आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन मैथ्स, यू ट्राइड। एड्रियन, और भी है, अभी नाम याद नहीं, मैं नाम याद करूंगा कल। पिज्जा ऑल्सो यस। अभी दिमाग में रखो, ये वापिस सिखाना नहीं पड़ना चाहिए। चलो करता हूं मैं इधर, तो y को y उधर ही रखता हूं, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स उधर लेके गया इज इक्वल टू 1। ओके, फर्दर y को इस साइड में लेके आऊंगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन y। फर्दर उस 1 को इस साइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल माइनस एक्स है, सॉरी माइनस एक्स रहने दे, माइनस एक्स को इधर लेके आओ तो भी चलेगा। एक सेकेंड, एक्स माइनस रहेगा तो क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी ये 1 माइनस एक्स ऐसे रखता हूं पहले, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई इधर लेता हूँ, एक्स उस साइड में लेता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन वाई, समझ में आ गया, इज इक्वल टू एक्स उस साइड में आ गया एक्स, इसको तो एफ ऑफ एक्स लिखना है अभी। x is equal to 1 upon y. The final step, f inverse x is 1 minus 1 upon x. बराबर है कि गलत किया कुछ? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, वो भी है, और आगे सॉल्व करना है तो आगे भी सॉल्व हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। अब क्या है, 1 माइनस, देखना ये ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन नहीं होगा तो इसको अगर आगे कर सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया अपना, दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, देख लेना उधर ऑप्शन में आपको क्या दिया है, दोनों भी करेक्ट है। ओके क्लियर, चले आगे करो इसको। अभी देखो मैंने f की जगह पे ना h लिखा, नाम चेंज किया तो डरो मत, मैंने जानबूझ के h लिखा। मैं फंक्शन का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, a भी दे सकता हूँ, b भी दे सकता हूँ, x भी दे सकता हूँ, जनरली f नाम देते हैं, x दिया है तो अभी f ऑफ x की जगह पे h ऑफ x है तो वही करेंगे।
करो, नाम चेंज किया इसलिए डरो मत। h रेस टू -1 मतलब h का इनवर्स चाहिए, f ऑफ x की जगह पे h ऑफ x दिया, नाम बदल दिया। मैं भी करूं, h ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4/5, 5 इधर आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, 4 उस साइड में जाएगा, तो 5x माइनस 4, सॉरी 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, 3 उधर जाएगा, 5y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। अभी y के जगह पे x कर दो, 5x होल डिवाइडेड बाय 3, लोगे आंसर। तो कल क्यों नहीं आया आंसर, ये बहुत सारे जन ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ओके और गलत भी है, करेक्ट कम लोग हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेप्स था, the inverse of h minus 1 when hx is equal to log 10x, anybody any guess? फिर मैं बता देता हूं, नहीं तो लॉग आ गया, जानबूझ के लॉग भी लेके आ गया, सब सारे सम मेरे को कवर करने थे। एनीबडी? जैसा प्लस का इनवर्स माइनस होता है, माइनस का इनवर्स प्लस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, वैसा लॉग का क्या होता है? एनीबडी नोस इनवर्स ऑफ लॉग? नहीं, इनवर्स ऑफ लॉग, चलो देखो अभी, यस नाउ दैट पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यस। Do you know what is inverse of log x raised to 10? Log x base 10. If yes, you got the answer. हो गया। हाँ, raised to होता है, log का इनवर्स raised to होता है। अभी वही कर रहा हूँ, देखो वो नहीं समझ तो ऐसे इधर से समझ लो, बाद में शॉर्टकट भी बता देता आपको। यस, करेक्ट 10 raised to। तो फर्स्ट थिंक अबाउट दिस, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। log of 10 to the base 10 is 1, log of 100 to the base 10 is 2, log of 1000 to the base 10 is 3, and so on. Now think reverse. If I give you 1, then answer should come as 10. If I give you 2, if x is 2, answer should be 100. If 3, then answer should be 1000, and so on. क्या होना चाहिए? इनवर्स क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? करेक्ट है आप लोग, 10 raised to x is the answer. दूसरा देखो, अभी बता दो आपको, लॉग वाले में ना ये शॉर्टकट है, इधर से आंसर मिलेगा। लॉग के आगे क्या लिखा है? जस्ट वन सेकंड, लुक एट द स्क्रीन व्हाट आई एम डूइंग। ये तुम्हारा आंसर है, दिख रहा है 10 raised to x, दिख रहा है? इनवर्स इज 10 raised to x, लॉग हटा दो, 10 raised to x दिख रहा है, वो लॉग निकाल के 10 raised to x। There is another way, shortcut trick. Clear now? Absolutely clear. इनवर्स में भी गलती नहीं होना चाहिए। 5 सम आज किए, मैं 3-4 सब आज किए। Let's move further and do another one. ओके, अभी इसमें भी आप लोगों का कुछ तरीके है, फॉग और उसमें वापस ले रहा हूं मैं, सारे ले रहा हूं। देखो 4 बोला है इधर, f of x is equal to x plus 3, g of x is equal to x square. If x is equal to 2, then fog x is equal to, पहला फॉग में पहला क्या होता है? एक सब मैं कर रहा हूं, बाद में आपको आ जाएगा, आगे क्या आप करो। फॉग में व्हाट आई शुड सॉल्व फर्स्ट? फॉग x, f फर्स्ट और g फर्स्ट? g
First G and then what G is saying? First G. Now what is G? G of x is equal to x square. What is the value of x? Value of x is 2. So that is equal to 2 square. कितना हो गया? 4. खत्म हो गया. अब ये 4 किसके पास जाएगा? ये 4 जाएगा आगे इसके लिए 4 जाएगा fx के पास. fx का फॉर्मूला क्या है? x plus 3. किसका फॉर्मूला है? fx का फॉर्मूला. अब ये 4 जाएगा x के पास. जो आंसर x के जाएगा that is equal to कितना हो जाएगा? 4 plus 3. So answer of fog is 7. Any doubt? Any doubt? Any doubt dear? जरा बोलो ना रे. सामने नहीं है मेरे, तो मेरे को समझता नहीं, फिर आप लोग गलती करते हो, मेरे को